हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो दिस इज आवर लास्ट वीडियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद हम दूसरे टॉपिक को शुरुआत करेंगे। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी स्टॉप कीजिए और इस क्वेश्चन को अभी पढ़िए और आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उससे उसके हेल्प से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए प्लीज। सो आई होप आपने पॉज किया है और एटलीस्ट रीड किया है और मैक्सिमम डाटा फाइंड किया है। सो गाइस, यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन पढ़े that a man sold two chairs at rupees 1200 each. One chair he sold at profit of 20%, and other he sold at loss of 20%. Find his overall profit or loss percent. So guys, अगर हम परसेंटेज के इसमें देखें, राइट, दिस आर परसेंटेज। अगर हम परसेंटेज में एक फॉर्मूला सीखे थे, whenever there is whenever there is percentage increase and percentage decrease is constant, then my overall percentage will be x square by 100 decrease. I repeat, whenever my percentage increase and decrease is constant, then my output value will be x square by 100 decrease. Now here x is nothing but my 20 and decrease means loss. Now guys, 20 square is my 400. 20 square is 400. The formula is simple: x square by 100. Here x is my 20 square is 400, and 400 divided by 100 is nothing but my 4% loss. So 4% decrease means 4% loss. So this is how we solve this type of problems. Let's move on to next problem. So just try to solve this problem, pause this video and solve it. So I hope you have solved or just tried your. So a man bought two chairs at 12,000 each, 1200 each. One chair is sold at profit of 20%, and the other chair is sold at a loss of 20%. Find his overall profit or loss percent. Now many of you assume that percentage increase and percentage decrease, x square by 100 decrease wala formula. But guys, wait, there is one difference in that question and this. Here it was a man sold two chairs. He sold at 1200 each. We were not concerned about the cost price. But in this question, यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि हमने 1200 रुपए में दी गई है, बराबर, हमने 1200 में लिया है। तो इसका ये जाहिर सी बात है कि अभी हमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं। हम ये क्यों अप्लाई करते थे कि हमें हमारा कॉस्ट प्राइस पता नहीं था, इसीलिए हम ये फॉर्मूला की यूज करते थे। सोल्ड है ना, सिर्फ इसीलिए। और हमें यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो 1200, तो वो सिंपल सी बात है। 1200 पे अगर मैं 20% का प्रॉफिट है, अगर सोल्ड करूंगा, तो वो हो जाएगा 1200 का 20% इज हाउ मच? 10% is 120 and 20% will be 240. So ये मेरा प्रॉफिट है एक चेयर पे। दूसरा चेयर जो है वो मेरा 20% लॉस है। 20% लॉस 1200 का मतलब -240। तो जाहिर सी बात है देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, बिकॉज हम दोनों चेयर ले रहे हैं 1200 में। एक चेयर 20% लॉस में बेच रहे हैं, एक चेयर में 20% प्रॉफिट पे, तो वो कैंसिल हो जा रहा है मेरा जो भी ओवरऑल प्रॉफिट है। So I think you have understood the concept that. And one more thing, whenever we want to apply this formula na, this value should be same. Like यहाँ पे क्या बताया, a man sold two chairs at rupees 1200 each. मतलब ऐसा नहीं कि 1200 और 1400 में, सॉरी 1400 में मैंने बेचा है, तो they are sold at same price. That's why we were able to apply this x square by 100 decrease वाला formula. I hope you have understood. So the next problem is, I think you can solve this problem. Just read it and convert in terms of my numerical formula. आप रीड कीजिए और उसको लिखने का ट्राई कीजिए, होता है क्या। So I hope you have tried this. So मैं अभी बताता हूँ। A man sold an article at a loss of 20%, बराबर। Had he increased the selling price by 100 rupees,
he would have gained 5%. Find the cost price of article. यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जो 80% में मतलब लॉस मतलब क्या था, 20% लॉस मतलब मेरा 80% कॉस्ट प्राइस. सो had he increased the selling price by 100 rupees, he would have, अगर उसने 100 रुपये अगर बढ़ा दिया, पहले जब बेच रहा था तब सिर्फ 80% की कमाई थी, मतलब 20% लॉस. पर अगर उसने 100 रुपये का दाम बढ़ा दिया तो मुझे 5% का लॉस हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है. मतलब कि मेरा कॉस्ट प्राइस बन रहा है 105%. तो जाहिर सी बात है ये किसकी वजह से होगा, 80% से 105% किस वजह से हुआ, जस्ट बिकॉज एडिंग 100 रुपीज. दैट मीन्स आई कैन से माई 105 minus 80, that means 25% is equal to my 100. अगर 25% 100 है तो टेल मी गाइस 100% कितना रहेगा, 25 into 4 कितना आता है 100. so 100 into 4 400. so this is my answer. देखो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे जो भी रिलेटेड जो भी है ना परसेंटेज से, एक ही काम करना है, एक मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. मतलब ये जैसे कि 25% जो है ना इसका इक्वल 100 है, बराबर वही वैल्यू फाइंड करना है और उसके हेल्प से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है. और वो क्वेश्चन में दिया जाता है इनडायरेक्टली, जैसे कि 80% है, अगर उतना बढ़ाने के बाद मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है तो बताइए मेरा पूरा प्रॉफिट कितना है. आप समझ रहे शायद से. So in the last video we have solved this type of problem. So let's solve it. Okay, so what is it saying? A dealer sold 3/4 of his article at a profit of 20% and the remaining at a loss of 20%. कुछ नहीं करना है, जैसे बताया गया है वैसे नंबर्स में वैसे लिखते जाना. अभी क्या बताया हमें इधर, अच्छे से लिखते हैं. 3/4 कितना 20%, राइट. और जो बाकी का है वो कितना -20% बिकॉज लॉस है, राइट. सो माइनस 1/4 20. तो सिंपल सी बात है, अभी कैलकुलेट करना है हमें, कैसे करना है. सो इट विल बी 23 just my 60. so again it will be simple calculation guys, so you can do it by your own. so हमारा आंसर आता है 40% by 4. so 40 by 4 is nothing but my how much 10%. so 40 by 4 is nothing but 10%. सिंपल सा. देखो ज्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि अगर अच्छे से करेंगे और उसको अगर फॉर्मुलेट करेंगे मतलब क्या बोलते हो, समझ जाए क्या बोलना चाहता हूँ, तो उधर ही सोल्यूशन आ जाता है उसका. नेक्स्ट सवाल देखते हैं. A man bought a chair and a table for rupees 6,000. He gained a 10% on the table and incurred a loss of 10% on the chair. He still gains rupees 100 on the entire transaction. Find the cost price of table. So let cost price of the table be x. Okay, अगर टेबल की प्राइस x है तो मेरी चेयर की प्राइस 6,000 माइनस x कंसीडर कर सकता हूँ क्योंकि ओवरऑल 6,000 है. सो अगर मेरा टेबल इज x, चेयर इज माय 6,000 माइनस x. सो सिंपली वही हमें रिप्रेजेंट करना है अच्छे से. गेन 10% ऑन द टेबल एंड इनकर लॉस ऑफ, मतलब 10% टेबल को 10% इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस लिखेंगे तो मेरा रहेगा 110 बाय 100 ऑफ माय x और इनकर्ड लॉस ऑफ 10% ऑन द चेयर, मतलब कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में लिखेंगे हम 90%. सो 19 बाय 100 इज माय 6,000 माइनस x और उसका इक्वल रहेगा गेन्स 100 रुपीज, मतलब 6,100, राइट. अब ये मेरा इक्वेशन तैयार होगा. अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू, मैंने पहले सॉल्व किया था तो मेरी x की वैल्यू है मुझे मिलती है 3,500.
So you can solve it. Okay guys, so this type of question will take time, but if you have a good observation skills, तो आप उसको 5 to 10 seconds में भी solve कर सकते हैं. Let me tell you how. He gained a 10% on the table and incurred a loss of 10% on the chair. He still gains ₹100. अभी देखिए परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज दोनों सेम है, फिर भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, राइट? मतलब कि माय टेबल्स वैल्यू विल बी मोर देन माय शेयर वैल्यू, बिकॉज देखिए अगर हम बात करें, अगर इट विल बी अगर 60 और अगर हम अज्यूम करें 30, इट्स 40 और 20, बराबर. अगर मैं 20 अगर टेबल की वैल्यू अज्यूम करूं और चेयर की वैल्यू 40 करूं और उसको अगर 10% से डिक्रीज होगा तो मुझे वो मिलेगा नहीं, क्योंकि 40 का 10 रहेगा मेरा लॉस 36 मिलेगा और 20 का 10 रहेगा मेरा हाउ मच 18. सो ओवर मेरा प्रॉफिट नहीं रहेगा, इट विल बी ऑलवेज इन माय लॉस. सो दैट इज व्हाई अगर हमें लास्ट में अगर प्रॉफिट मिल रहा है, दैट मीन्स इट शुड बी मोर देन माय शेयर वैल्यू. मतलब अगर हम शेयर वैल्यू को कैसे कंसीडर करेंगे, 6000 है तो डेफिनेटली इट विल बी 3000 एंड 3000, बराबर. तो इट शुड बी मोर देन 3000. सो ऑप्शन में हमें पता चल रहा है कि इट इज 3500, राइट? सिंपल सा क्वेश्चन था. मतलब देखिए 6000 उसके दोनों का मिला के, और एक्चुअली हम फाइंड किस बेसिस पे करें, क्योंकि प्रॉफिट और लाइक परसेंटेज इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज दोनों सेम है और उसके साथ हमें ओवरऑल प्रॉफिट भी मिल रहा है. मतलब मेरा जो गेन है, मतलब जो 10% गेन है, उसका वैल्यू मस्ट बी मोर, राइट? उसका वैल्यू बड़ा रहना चाहिए. तो ऑप्शन में सबसे बड़ा तो 3500 है, राइट? सो वी आर गेटिंग इट. So I think you have understood all my concept what I will teach you. So in the comment section, tell me the answer of if you have given any practice problem, and do like, share with your friends, and do not forget to subscribe. I will meet you in the next video. Till then, goodbye.